آپ شوہر سے شادی کیے نا؟ لو میرج تھا؟ ہاں ہاں. صحیح تھا کیا غلط تھا الگ بات ہے، لیکن جب آپ اپنی شوہر کی اتنی محبت کرتی ہے، شوہر آپ کی محبت شوہر آپ سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے نا؟ میں بھی میری بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں میری بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ہیلو دوستو، السلام علیکم. تو کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا، جس میں سوال اور جواب کا سیشن چل رہا ہے. تو اس میں ایک غیر مسلم خواتین ان سے کچھ سوال کرتی ہیں، اور ان کا جو سوال ہوتا ہے اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو جواب دیتے ہیں تو بہت ہی بہترین طریقے سے ان کو مثال دے کر کے، ایگزامپل دے کر کے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیا سوال ہے اور ان کا کیا جواب ہے. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. ویڈیو کا میں بیچ بیچ میں ویڈیو کا ریئیکشن دیتا رہوں گا، تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا. چلیے ویڈیو فٹافٹ شروع کرتے ہیں. 4 میں نان مسلم بہن سوال کر سکتی ہیں. میرا نام سپنا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میں ہندو کی گھر کی ہوں. میرا آدمی مسلمان ہے، محمد حامد قریشی. میں یہ سوال پوچھتا ہوں، پورکھوں سے یہ جات بیت کا چل رہا ہے، تو یہ ہندو مسلمان آپ بولتے ہو جو ہندو مسلمان الگ الگ نہیں ہے، ایک ہے. میں مانتا ہوں، مگر یہ بات ہے جو ہندو بچہ ہوتے ہیں تو ہندو کا سلامی دیا جاتا ہے، جو مسلم بچہ ہوتا ہے ایک بات دوستوں بتانا چاہوں گا، نماز نہیں دیا جاتا، اذان دیا جاتا ہے. اس خواتین کو غیر مسلم ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جو ہے کیا بولتے ہیں، اذان دیا جاتا ہے، نماز نہیں دیا جاتا ہے. بیچاری کو پتہ نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس لیے ان سے مسٹیک ہو گیا، نماز وہ بول دی. تو چلیے آگے کا دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں. جب بھی اس کا کان میں نماز دیا جاتا ہے، آج جب بھی ہندو کا بچہ ہوتا ہے اس کا نام پہ نام دیا جاتا ہے، کرشن نام دیا جاتا ہے یا رام نام دیا جاتا ہے، جو بھی دیا جاتا ہے. جس کو جیسا شکشا دیتا ہے اس کو ویسے ہی شکشا ملتا ہے. جیسا ہمیں سکھایا گیا بچپن سے بھگوان کو ماننا ہے، ہم بھگوان کو مانتے ہیں، ہم مسلمان دھرم کو بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں مانتے نہیں. ہمیں جیسا شکشا دیا گیا ہے ویسے ہی شکشا میں مانتا ہوں. مگر آپ بولتے ہو جو مسلمان ہی ہوئے گا، ہندو نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کیسے بول سکتے ہو؟ تو پورکھوں اتنی بزرگ لوگ تھے، اتنی جانتے ہیں، تو آپ کے ساتھ تو بحث لڑ نہیں سکتے. آپ بہت جانتے ہو تو میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں. ہمارے باپ دادا سب مطلب انہوں نے دیکھ کے آیا، یہ ہم نے بھی دیکھا ہے. ہم ہندو کی ہوں، مگر جو بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو سنمان کر سکتے ہوں. بہن کا سوال ہے اور مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی ہے، میں بھی آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. نہیں کر نہیں سکتے، کیسے ہمیں اتنا شکشا نہیں ہے، اتنا بول نہیں سکتا ہے نا. بہن کا سوال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلم ایک ہے، لیکن جو ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے اسے ہندو شکشا دی جاتی، جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے مسلم کی شکشا دی جاتی. تو یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ مسلم صحیح اور ہندو غلط؟ یہ کیا ہے؟ بہن، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شکشا کم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 2 + 2 کتنی ہوتی ہے؟ آپ بتائیں دوستو کہ 2 + 2 کتنے ہوتا ہے؟ 2 + 2 کتنا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں پہلے. 2 جیسا کہ آپ کو + 2 پتہ ہی کتنا ہے، ہوتا ہے؟ 2 + 2 4 ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں. تو یہ مت کہو کہ آپ کو شکشا نہیں ہے. اگر گاؤں سے کوئی آتی ہے لڑکی اور کہتی ہے کہ میرے والد نے مجھے سکھایا 2 + 2 5، تو آپ کیا کہیں گے اس سے؟ 4 ہوئے گا 5 4 ہوئے 5 کیسے ہوں گا؟ تیرے والد کو میتھمیٹکس نہیں آتی تھی؟ نہیں، میرے والد نے تو سکھایا. 4 ہوگا 5 کیسے ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، 2 + 2 4 بھی، 2 + 2 5 بھی. یہ کہنا غلط ہے. دونوں میں سے تحقیق کرنے پڑے گا کون سا صحیح ہے، اس کے اوپر عمل کرے. نہیں میں کیا چاہتی ہوں، ہندو بھی تھے مسلم بھی تھے، 2 + 2 4 بھی تھے، 2 + 2 5 بھی تھے. آپ تو ماشاءاللہ بہت ودوان ہیں، آپ جانتے 2 + 2 4 ہے. کتنے لوگ نہیں جانتے 2 + 2 4 ہے، وہ کہتے 5 ہے. تو کیونکہ خدا نے آپ کو علم دیا، عقل دیے، آپ کا فرض ہے کہ آپ ان سے کہے بہن جی 2 + 2 5 نہیں، 2 + 2 4 ہے.
फिर वो कहेंगे अच्छा अच्छा दोनों सही है, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, 2 जमा 2 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया कि बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते, मैं आपसे नहीं बहस करता हूं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते हैं डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूं, मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों से डिबेट किया, क्रिश्चियन लोग से डिबेट किया, हिंदू लोग से डिबेट किया, और भी बहुत लोगों से इन्होंने डिबेट किया, इंटरनेशनली डिबेट किया इन्होंने, और कुरान और हदीस से रिलेटेड ही ये बोलते हैं, उन्हीं को मुताबिक बोलते हैं, ये खुद से कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो इनका डिबेट जो है बहुत से लोगों से हो चुका है, मैं भी वीडियो देख चुका हूँ। तो आइए देखते हैं आगे क्या। मैं बदलने को तैयार हूं, आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूं गलत है, क्या मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूं। ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। 19 साल तक के मैं भी, मेरे वालिद थे इसलिए मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा, पता चला कि मैं सही मजहब में हूं, और फिर दिगर मज़ाहिब का मुताला किया कि हर मज़ाहिब में अच्छी बातें हैं, हर मज़ाहिब में बदलने के बाद भी, उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। इसके मतलब हमारी जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफी चीज सही है, काफी चीज गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूं, डिबेट, डायलॉग। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखो एक बहुत माना हुआ श्री रविशंकर के बारे में सुना? श्री शंकराचार्य, हिंदू श्री रविशंकर। ये लोग जैसे आपने किताब पढ़ के आप जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो, ओरिजिनल में किसने देखा है? बिल्कुल सही। वो कहता कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं आते अपने किताब उनकी कहते हैं इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूं कि आपके जो विद्वान के बड़े से बड़े हैं, जो पीएचडी, उनसे कहता हूं आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो, मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इसलिए हवाले दिया। मैं पूछता हूं अगर मैं गलत हूं तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूं कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानिए अक्स, उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो जा सकते, जैसा शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति पूजा नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो, गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो। लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या नहीं बहन? मैं कहूँगा कि मूर्ति पूजा जो है वो गलत है, और 100% 100% गलत है। मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान एक है, अल्लाह एक है, और वो उसका कोई अक्स नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई फोटो नहीं, कोई स्क्रिप्चर नहीं, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ हम उनका वजूद है और हम उनको मानते हैं, दिल में है, दिल में ईमान है, यही काफ़ी है। और इंशाअल्लाह आखिरत के रोज़ जब हम कामयाबी पाएंगे, जन्नत में दाखिल होंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उस दिन अपना अक्स जरूर दिखाएगा, अपना चेहरा जरूर दिखाएगा इंशाअल्लाह, अगर हम कामयाबी पाते हैं। तो मूर्ति पूजा गलत है दोस्तों। अगर आप में से कोई मूर्ति पूजा करते हैं तो आप जल्द से जल्द इसकी तहकीक करें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सही जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर वो गलत राह पे चल रहा है तो उसे सही रास्ते पे आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आखिरत के रोज़ मर जाने के बाद जब हिसाब किताब होगा तो उस दिन से उनको सवाल का जवाब देना। तो हमें सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है, क्या सच है क्या गलत है, क्या हक है क्या बातिल है, तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप भी कोई मूर्ति पूजा करते हैं तो मूर्ति पूजा से दूर रहे और इसके बारे में तहकीक करें क्या सही है क्या गलत है। आइए आगे का वीडियो देखते हैं। तो
वैसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करता हूँ, मगर वो बात नहीं बोल रहा कि मैं गलत नहीं तो करता अगर आपकी सुधारना तो सहेली जरूरी कह है। रही है 2 जमा 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो आप मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत क्या दूं। बात? मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखे गलत है, उसको बाजू रखो, आप कुरान में नहीं मानती। आपके धार्मिक किताब में लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो वो फिर आप क्यों कर रहे मानता है, हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया जी, इस धर्म को बहन, ऐसा बुलाया जाए, एक- ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करें, फिर दूसरी चीज पे जाए। बेशक। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा कर क्या है, अगर आज की तो पुरखों बात ने- नहीं, हमने मना कर दिया, चलो हम नहीं कर रहा हूँ, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकता है ना। अगर जमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 जमा बेशक। 2 5 है, तो आप उसको मानेंगे? पहले साइंस जब तरक्की किया दोस्तों, तो वो कहती थी कि दुनिया चपटी है, लेकिन आज साइंस तरक्की किया तो वो कहता है कि आज दुनिया जो है ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उस शेप का है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पुरख जो हमारे बाप दादा जो कहते थे या वो करते थे तो वो सही ही हो। जहाँ तक मैडम का फातिम का ये जो फातिम इनका सवाल है, बार बार ये कह रहे हैं कि इनका पुरखों से चला आ रहा है कि जो उनके पुरखे करते थे वो सही है, तो उसी का ये क्लैरिफिकेशन चाहती है कि अगर मैं हमारे पुरखे जो करते आ रहे थे हम बहुत पहले से ज़माने से, तो क्या वो गलत है उनका? ये जहाँ तक मुझे समझ में आया कि इनका यही सवाल है कि हमारे पुरखे जो बहुत सालों से ज़माने से पूजा, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? तो उसी के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक उनको जवाब दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पुरखे सही ही हो। अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप तहकीक कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। उसी के बारे में वीडियो में बात चल रही, तो आगे का वीडियो देखते हैं। मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? बोले गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान है, हम्म, आप तो जानती है। हम्म। तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है तो क्या करूं मैं? उसकी बात को मानूं कि छोड़ दूं? तो उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था? बिल्कुल सही, आज का जमाना है। आप उस टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना, अभी उस टाइम बल्कि जमाना भी अच्छा था, बदल नुक रहा है। था, पहले- अभी निक नहीं है। पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ों लोग एक साथ में देख सकते थे। आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा है, लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ों लोग देखते, तो आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा। करोड़ों के सामने आपको कहा गया है कि क्या मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा। मूर्ति बाकी पूजा गलत है, मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखाया गया, आपकी कुरान शरीफ में जैसे लिखाई गया, हमारे गीति महाभारत में लिखाया गया, मगर क्या वो लिखा है? पढ़ना तो गुनाह नहीं है ना। ने किधर न, मैंने कब बोला कि गीता? मैं भी गीता पढ़ता हूँ। मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है? मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ। आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं। मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ गवार हूँ। मैं लेकिन पढ़ा हूँ। हाँ, आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बहस नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ। मगर मैं मैं यही नहीं बोल कर रहा रहा हूँ हूँ। हमारी पुरखों बेशक बेशक, अगर हमारे बड़े अगर कुछ मेरे पुरखों कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानूं मैं उसकी पुरखों की बात? मैं पुरखों की इज्जत करूंगा। भाई मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे, इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 जमा 2 5, तो क्या मानूं? मैं कहूंगा, मैं उनके अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, बराबर। प्यार से आऊंगा, लेकिन कहूंगा कि आप गलत है। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप जोर से शादी किए ना, लव मैरिज था? हाँ, हाँ। सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शोहर की इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपकी मोहब्बत कर, शोहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं? करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरे बेटियों से भी मोहब्बत करता हूँ, जिक्र और रुजदा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? आप चाहते हैं कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या नहीं? जाए क्या नहीं? तो मैं पूछता हूं कि अगर एक गाड़ी है, मिसाल एक गाड़ी जब चलती है, मिसाल से एक पहिया है,
साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी बिल्कुल चलेगी क्या? नहीं नहीं चलेंगी ना, नहीं नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है। चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी, अगर ट्रक के टायर तो बन जाएगा ट्रक। तो हमें ये देखना, तहकीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके आप अपनी शोहर की बात को मानो। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ज़हीन होना जरूरी है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अनपढ़ थे, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन माशाअल्लाह, सबसे ज़हीन थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब साफ तौर पे किताबों, आपकी किताबों में, हिंदू मजहब की किताब में और कुरान में लिखा है, आपके पुरखे अगर गलत चीज कहते थे तो आपको गलत चीज पे अमल करना जरूरी है? नहीं। तो आप क्यों नहीं बुत परस्ती छोड़ते? आप कहते आप शोर से मोहब्बत करते हैं क्या? नहीं, क्वेश्चन मार्क है, हाँ क्वेश्चन मार्क है। हाँ ये ऊपरी मोहब्बत है। सही मोहब्बत होगी तो मैं चाहूंगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी बीवी मेरे साथ हो। आप नहीं चाहेंगे आपके शोहर आपके साथ हो क्या नहीं? तो आप ये नहीं तहकीक करेंगे कौन सही आपका शोहर क्या? आप नहीं, वो मानते हो मेरा शौहर क्या है, मगर उनका भी मानते हो, मगर ये मूर्ति पूजा है इसका छोड़ सकते हो, मगर मेरा धर्म का जो नाम है वो तो कान में लेना मैं जरूरी धर्म का समझती नाम हूँ। की बात कर रहे हैं आप? हाँ नाम की नाम से मैं भी हिंदू हूं। क्या हूं? हिंदू। हिंदू का मतलब अच्छा, हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते हिंदू। दो हाँ ये लफ्ज सबसे पहले वजूद में कैसे आया? जब अरब लोग हिंदुस्तान में आए तो उनने ये लफ्ज हिंदू दिया। हिमालय के हिंद से, सिंधु के दू से कुछ लोग कहते। इसीलिए आज जब मैं जाता हूं गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में, कहते हिंदी है, जाकिर हिंदी है। तो लफ्जी मानी से मैं हिंदू हूं। इट्स ए ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। जो हिंदुस्तान में रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये मजहबी डेफिनेशन ने ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। मैं हिंदुस्तानी हूं, लफ्ज के डेफिनेशन से मैं हूं हिंदू। इनका कहने का मतलब है कि जियोग्राफिकल डेफिनेशन के से मैं हिंदू हूँ, लेकिन अगर मजहबी एतबार से देखा जाए तो मैं मुस्लिम हूँ। नहीं करेंगे तो वैसे आप भी हिंदू नहीं है, लेकिन आप लफ्ज को पकड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप हिंदू नहीं सकते। मैं भी हिंदू, मैं मुसलमान हिंदू हूँ। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन आप समझ रहे? आप बहुत नहीं है माशाल्लाह। वो बहुत से लोग प्रोफेसर होते और समझते नहीं। आप कहते हैं कि आप अनपढ़ नहीं और समझ रहे, माशाल्लाह। तो ऐसा इल्म का क्या फायदा जो आपको खुदा की तरफ नहीं लेके जाए? कल मेरी तकरीर थी, इल्म तालीम दोनों जहां के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में, तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं। आप बुत परस्ती को छोड़ दो क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है हराम में, तो आप बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है? तैयार है? हाँ माशाल्लाह। मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ माशाल्लाह। उसका मतलब मुस्लिम है? हाँ। तो आदमी के पास आएगा तो मुसलमान ही है जी, आदमी मुसलमान होएगा तो औरत जात मुसलमान ही होता है। औरत जात का कोई जात आदमी है तो मुसलमान है। कभी कभी जरूरी नहीं, उल्टा भी होता है। जो औरत है वो आदमी बन जाता है। क्योंकि एक मैं कहूंगा सही है क्या बताने, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है? तो प्यार अंधा भी होता है। बराबर। मेरी उर्दू इतनी महान नहीं है। दिल लगे दीवार से तो परी शेख क्या फैजुर चीज। रहमान मुझ पे हंसेंगे, उन्हें कौन सा शहर कह दिया ऐसा? सब शहर पब्लिक के लिए नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने शादी तो किया, मोहब्बत तो की, लेकिन अमल में आप अगर बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है, एक खुदा को मानने तैयार है, एक और मानने को तैयार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकती है। हाँ मैं मुस्लिम तो हूँ। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं मेरे को कभी कोई किया ही नहीं। माशाल्लाह। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरे को अभी 8-9 साल हो गया। 9 साल हो गए। आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया। सही क्या है गलत क्या बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ
آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں؟ نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتی؟ ہم. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. الحمدللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں یہ میں اجازت دیتی ہوں کہ کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی کوئی معبود نہیں معبود نہیں ہے اور اور محمد الحمدللہ. محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں. بندے ہیں. ماشاءاللہ ماشاء اللہ. آپ 9 سال کے بعد اب مسلمان ہو چکی ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسلام کا علم حاصل کرو, قرآن مجید ترجمے کے دوستوں ساتھ ایک بات پڑھیے. بتانا چاہوں گا کہ ہر مذہبی کتاب, جتنے بھی مذہبی کتاب ہے, کرسچن بائبل ہو یا قرآن ہو یا وید ہو یا اور بھی جڑے ایک جتنا بھی مذہب ہے, ہر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے اور ہمیں مورتی پوجا نہیں کرنی چاہیے. تو آپ بھی اگر غیر مسلم ہیں دوستوں تو آپ اپنے مذہبی کتاب وید پڑھے, بھگوت گیتا پڑھے اور اس میں اس کی تحقیق کرے اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور سچ ہے کہ غلط ہے. جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو حوالہ دیا ہے اپنشد کا اور وید کا اور بھگوت گیتا کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے. بھگوان کا کوئی عکس نہیں ہے, کوئی پرتیما نہیں ہے. آپ کے ہندو مذہب کتاب میں لکھا ہوا ہے تو آپ اس کا حوالہ پڑھیں اور خود سے دیکھیں, خود سے سمجھیں. تو آئیے آگے دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کیے. اور آپ کی یہ شہادت نے میرے کل کی تقریر کو مکمل کیا ہے. میں کہہ رہا تھا تعلیم دونوں جہاں کے لیے, وہ تعلیم آپ پی ایچ ڈی پاؤ, پی ایچ ڈی کرو, ٹیچر بنو, پروفیسر بنو, لیکن آپ کے رب کے قریب نہیں لے کے آئیں گے, آپ کے خالق کے قریب نہیں لے کے آئیں گا وہ تعلیم, تو فائدہ کیا ہے؟ تو آپ اس پروفیسر سے بہتر ہے جو اس کا تعلیم اس کو رب کی طرف نہیں لے کے آ رہا ہے. میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں انشاءاللہ جنت دے. ہوپ ڈانس دا کوشچن. آپ کو سلام, آپ کی جتنی بھی مسلم بھائی ہے اس کو بھی میرا سلام. مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہو غیر مسلم تو سوال کیجیے. السلام علیکم, میرا نام سنگیتا ہے. الحمدللہ. میرے وعلیکم شوہر السلام نے ورحمۃ اللہ اسلام قبول وبرکاتہ. کیے. میں ہندو ہوں تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا اور مجھے قرآن سوال کی دوست. کتاب لا کے دی اور میں نے اسے عمل کیا اچھا, کہ اللہ ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. تو میں نے اسلام قبول کی اور مجھے اسلام کرنا ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آج لگتا ہے جو شوہر کے بیویاں غیر مسلم تھے, آج اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے رہا ہے. اور شروع میں جو کرائٹیریا ہے لوگ اسے خود دہرا رہے. بہن میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کی زبردستی کر رہا ہے؟ جی نہیں. بہن آپ کی کتنے سال پہلے شادی ہوئی؟ میری شادی کو 15 سال ہوئے. الحمدللہ. 15 سال ماشاءاللہ. سے شوہر آپ کے ساتھ کوشش کر رہے ہاں, کہ آپ کوشش. ہاں. ماشاءاللہ 15 سال کے بعد اس کی کوشش کا آج آپ کو پھل نظر آ رہا ہے کہ اکیلے میں نہیں, سارے مجمع میں, لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ شہادت دینا چاہتی ہے. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کوئی بھی زبردستی نہیں, کوئی بھی دباؤ؟ نہیں, کسی کا دباؤ نہیں. آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی دباؤ؟ جی نہیں. آپ کو کوئی وارننگ نہیں دی آپ کے شوہر نے نا کہ شادی نہیں کروں گی تو طلاق دے دوں گا؟ جی نہیں. کوئی وارننگ نہیں. میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں
मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप इस्लाम के बारे में और पढ़िए, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। कुरान मजीद इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में है। सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद हिदायत के लिए। आप उसका तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल के लिए इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको इस जहां और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जन्नत फरमाए इंशाअल्लाह। और मेरा एक सवाल है, ताकि मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो मुझे इस्लाम के तरीके निकाह करना पड़ेगा क्या? इनका सवाल है कि ये अभी मुसलमान सवाल है बनी है तो क्या इनको जो है निकाह है मुसलमान इस्लाम के तरीके से करना जरूरी है? तो इनका सवाल है क्या करने पड़ेगा? बेशक, क्योंकि पहले आपने कैसे निकाह किया मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर सही तरीके से जिस तरीके से निकाह करना चाहिए नहीं किया आपको करना पड़ेगा। और एक चीज जरूरत है, आपके शोहर होने वाले शोहर या शोहर को मेहर देने पड़ेगा। आपका फायदा है, आप मेहर पूछ सकती है कि आपके शोहर या आपके होने वाले शोहर से क्या मुझे 1 लाख मेहर जो हो सकता है, आप 2 लाख पूछ सकती है। मुझे पता नहीं क्या ताकत है आपके शोहर की, 5 लाख भी पूछ सकती है, मेहर पूछ सकती है। ये आपका हक है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 कि शादी के वक्त अपनी होने वाली बीवी को एक तोहफा दो, जिसे कहते हैं मेहर। मेहर शादी के लिए, निकाह के लिए फर्ज है और आपको इस्लामिक तरीके से शादी करने पड़ेगा। और इंशाअल्लाह कोशिश करो कि जितनी भी आप जानकारी रखते इस्लाम के बारे में, उसके लिहाज से आप और आपके शोहर उसके ऊपर इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी बसर करें। तो दोस्तों आप सबने वीडियो देखा, सवाल भी सुना, जवाब भी सुना और खुद से देखा, तो कैसा लगा वीडियो आपको नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि हर मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है और हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, बस हमें एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो आप लोगों से भी इल्तिजा है कि अगर आपको अगर सच्चाई का पता नहीं है कि अल्लाह एक है और आपकी धार्मिक किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह एक है और उसका कोई मूर्ति नहीं है, कुछ अक्स नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, आप अल्लाह को इबादत करो, दिल में मान लो कि अल्लाह एक है और उन पर ईमान लाओ और कुरान पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हिदायत देगा और कुरान के जरिए आपको कामयाबी हासिल होगी। तो दुआ करता हूँ दोस्तों कि आप सबको अल्लाह ताला हिदायत दे और आप कुरान पढ़ें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।